سب سے پہلے بات سہانے موسم کی تو ملک کے مختلف شہروں میں مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو گیا۔ بارش نے گرمی کی شدت کا زور توڑ ڈالا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس سے گرمی کی شدت میں واضح کمی آئی ہے۔ سرگودا میں تیز آندھی کے بعد بادل جم کر برسے۔ موسلادھار بارش کے پانی سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شیخوپورہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم تبدیل ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں واضح کمی آئی ہے۔ فیروزوالا، شاہدرہ اور لاہور کے نواحی علاقوں میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، جس سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شہریوں نے شدید گرمی کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ فیصل آباد، جڑاوالا، چنیوٹ، ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ بارش کے بعد تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جس سے موسم سرد ہو گیا۔ گرمی کی شدت میں کمی کے بعد شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مسن، پھالیاں، جہلم، دینا اور حافظ آباد میں بھی بادل دل کھول کر برسے، جس سے فصلیں خوب سراب ہوئیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا، جبکہ گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ میاںواری میں بھی طوفانی بارش سے کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ اس کی چکوال میں بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ شہری بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے۔ منکیرہ، بکھر اور دریا خان میں بھی بارش ہوئی، جس سے صحرائی علاقوں میں گرمی کی شدت میں واضح کمی آئی۔ ملک کے بالائی علاقوں اٹک، مانسہرہ، ایبٹ آباد، حویلیاں، مظفر آباد، وادی نیلم سمیت گلگت بلتستان کے کئی علاقوں سکردو، گانچھے، خپلو میں بارش ہوئی، جس سے موسم یکسر تبدیل ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ اسلام آباد میں مونسون کی بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کے برسنے کا سلسلہ دن کے مختلف اوقات میں جاری رہا۔ تیز بارش کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ ڈالا۔ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ دن کے آغاز کالی گھٹاؤں کی سورج کے ساتھ آنکھ مچولی سے ہوا، لیکن کچھ ہی دیر بعد گرجنے والے بادلوں نے برسنا بھی شروع کر دیا۔ بارش کے برسنے کا سلسلہ دن کے مختلف اوقات میں جاری رہا۔ مارگلہ ہل سے لے کر F6 اور 7، F8، E7 0 پوائنٹس اور راول چوک سے چک شہزاد فیض آباد فلائی اوور کے اطراف میں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے بعد تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہریوں نے لاک ڈاؤن کے باوجود سموسے اور پکوڑوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا، جس سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ اور اب رخ کریں گے لاہور کا، تو لاہور میں بارش کی بوندوں نے گرمی کی شدت کو ختم کر دیا۔ اب بارش سے شجر اور شاہراہیں دھل گئیں اور ہر طرف بہار چھا گئی۔ اس پر رپورٹ کریں گے وقار حسین۔ لاہور میں بارش کی بوندوں نے گرمی کی شدت کو ختم کر دیا۔ شہری موسم خوشگوار ہونے سے خوشی سے جھوم اٹھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ بارش کی بوندوں سے گرمی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اللہ کا شکر، اللہ کی رحمت ہے۔ فل انجوائے موسم کر رہے ہیں، ریس کورس سے ہو کے آ رہے ہیں ہم، بہت زیادہ انجوائے ہوا وہاں۔ جتنی 2 دن گرمی پڑی ہے وہ اس لحاظ سے تو الحمدللہ اچھا ہو گیا موسم۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش سے شجر اور شاہراہیں دھل گئیں اور ہر طرف بہار و بہار ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تیز ہواؤں اور بارش سے گرمی سے چھٹکارا مل گیا۔ اب دعا ہے کہ ہمارے ملک سے کورونا وائرس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ پھر اللہ پاک کا شکر ہے، بہت دنوں سے 2-4 دن سے بہت زیادہ گرمی پڑی ہے، تو آج اللہ پاک نے رحمت کی بارش کر دی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بارش کے صدقے ہمارے جو کرونا جیسی بیماری کو پاکستان سے ختم کر دے۔ بارش کی بوندیں برسیں تو واسا کے اہلکار بھی حرکت میں آ گئے۔ واسا کی گاڑیاں شہر بھر میں پھرتی رہیں۔ واسا کے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ مونسون کے کیمپس شہر میں لگا دیے گئے ہیں اور بارش کے پانی کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ واسا کی تیاری جی مکمل ہے۔ تمام جگہ پہ ہم نے اپنے واٹرنگ سائٹس، ڈسپوزل مشینری سارا کچھ ایکٹیو کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جلد از جلد جو پانی جو ہے وہ ہم نکال رہے ہیں۔
मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश जारी रहने का इम्कान है, जिससे शहर का दर्जा हरारत नीचे आ जाएगा। बारिश की बूंदें बरसी तो शहरियों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्हें गर्मी से निजात हासिल हो गई है। अब शहरी अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं कि हमारे मुल्क से मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद आमीन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। शदीद तूफान और बारिशों के बायस आइस्को और लेस्को रीजन्स में सैकड़ों फेडर्स ट्रिप कर गए। आइस्को रीजन में इस्लामाबाद सर्कल के 15, अटक सर्कल के 12 और रावलपिंडी सर्कल के 20 फेडर्स ट्रिप कर गए, जबकि लेस्को रीजन के 170 फेडर्स से बिजली की तरसील मुतासिर हुई है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं और बारिशों से जल थल एक हुआ तो साथ ही एस्को और लेस्को के निजाम ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ रीजन्स के सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। शदीद तूफान और बारिश के बायस एस्को रीजन में इस्लामाबाद सर्कल के 15, अटक सर्कल के 12, रावलपिंडी सर्कल के 20, जेलम के 12 और चकवाल सर्कल के 20 फीडर्स ट्रिप कर गए। तर्जमान के मुताबिक एस्को हुकाम ने मुतासरा फीडर्स पर बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया। लेस्को रीजन में तेज आंधी और तूफानी हवाओं के बायस 170 फीडर से बिजली की तरसील मुतासिर हुई। तर्जमान लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान के बायस तारे जमीन पर गिरने के बायस बिजली की तरसील बंद हुई। उन्होंने शहरियों को भी मुतासरा इलाकों में तारों और खंभों के करीब न जाने की हिदायत की। लेस्को तर्जमान ने मॉनसून बारिशों के दौरान खास तौर पर बच्चों को गली मोहल्लों में खेलते हुए बिजली की तनसीबात से दूर रहने और हाई टेंशन लाइनों से कम 100 फीट दूर रहने की अपील की है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजलाओं में पहली मानसून बारिश का आगाज 6 जुलाई से होगा, जो 8 जुलाई तक जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार शाह कहते हैं कि कराची 3 दिनों के दौरान मुतदिल और तेज बारिश का इम्कान है। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लड जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मानसून की पहली बारिश देने वाला सिस्टम 6 तारीख से उम्मीद है कि थरपारकर के रास्ते दाखिल होगा सिंध में। ये एक्चुअली इंडियन गुजरात और राजस्थान वगैरह पे ये सिस्टम बन रहा है और 6 तारीख की सुबह या दोपहर में हमारे थरपारकर रीजन में दाखिल होगा और उसके नतीजे में फिर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट, सांगड़ और मीरपुर खास, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा वहाँ बारिश बरसाता हुआ फिर कराची की तरफ इसका रुख होगा। कराची में उम्मीद है कि 6 तारीख की रात से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है और जो कि 7 तारीख और 8 तारीख दोनों को 7 और 8 जुलाई दोनों को जारी रहेगा और इसके नतीजे में एक अच्छी बारिश हो जाएगी पूरे लोअर सिंध में। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स लोअर सिंध के नवाबशाह तक के एरिया में इसमें अच्छी बारिश हो जाएगी। और अब बात करें बिजली की लोड शेडिंग की, तो मुल्क भर में कोरोना और शदीद गर्मी के सताए शहरियों पर लोड शेडिंग का अजाब है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शहरियों के लिए दिन और रात गुजारना वबाल बन गया। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। कराची में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की नाअहली की वजह से 10 से 15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। की मुसलसल बंदिश से अवाम आराम के रहे न काम काज के, घर में सुकून मुयस्सर न बाहर चैन नसीब। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। तवील लोड शेडिंग से सताए अवाम के ज़हनों में एक ही सवाल, मुरम्मत के नाम पर आज कितने घंटे बिजली जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ने से शहरी अजियत में मुब्तला है, कोई पुरसाने हाल नहीं। मुल्तान, हैदराबाद, मीरपुर खास, कोटकी और दीगर शहरों में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे, देहातों में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया है। बाज़ शहरों में शहरियों को बिजली लोड शेडिंग के बाइस पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़े सनती शहर कराची में तो सूरत हाल ही खराब है कि इलेक्ट्रिक के बोसीदा तरसीली निजाम की वजह से शदीद गर्मी में रोजाना 10 से 15 घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से पानी का बहरान अलग से शिद्दत इख्तियार कर गया है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के 27 शहरी रोजाना एहतजाज करने पर मजबूर हैं, लेकिन मजाल है कि एहतजाज और अपीलें भी किसी काम आ रही हूँ। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक कराची वालों को तशद्दुद की जानिब धकेलना चाहती है। दिन हो या फिर रात, बिजली वालों का कराची वालों से मजाक जारी। शहर के बेशतर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर है। कहीं 12 तो कहीं 14 घंटे बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी में कराची वाले शदीद अजियत का शिकार हैं।
शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। दिन हो या रात बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला तवातर से जारी है। कहीं 12 घंटे तो कहीं इससे भी ज्यादा बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। शहर के अक्सर इलाकों मलीर, शाह फैसल, अल्फला सोसाइटी, जामा मिलिया, गुलिस्तान जोहर, अबुल हसन अस्पानी रोड समेत दीगर आबादियों में हर 2 घंटे बाद बिजली बंद की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों की रातों की नींदें हराम और दिन का सुकून बर्बाद हो गया है। या तो गवर्नमेंट ऐसा करे, ये सारे केसी के खंबे वंबे उखाड़े और अपने जो ना घर ले जाए, रख ले वहाँ पे सुकून से। क्या फायदा है ऐसी लाइट का जो हो ही नहीं, फिर वे लकड़ियों पे जला लेंगे। लाइट नहीं होगी तो क्या करेगा आदमी। 14 घंटे बिजली जा रही है, रातों को 2-2 टाइम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइट नहीं होती है। सुबह फिर थोड़ी देर होती है, फिर सुबह में चली जाती है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो ऐसे बच्चे भी नहीं सो पाते, इतनी गर्मी में पानी भी नहीं होता। बिजली आती है तो पानी नहीं होता, पानी आता है तो बिजली नहीं होती। इलाका मकीनों का कहना है कि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब इजाफी बिल्स भी भेजे जा रहे हैं। बैठे में भाई एक लोड शेडिंग उन्होंने मार दिया, कोरोना करके मारा भाई। 5 महीने से बैठे में, दूसरे इन्होंने मार दिया। क्या करे आदमी, परेशान है। इतनी मुश्किल हो जाती है ना, रात को चाहे जिस टाइम बंद करके बैठ जाते हैं। ये नहीं देखते कोई बीमार है, ना ये पता है कि कोई अच्छा है बुरा है। रात को भी इन्होंने 2 दफा बिजली बंद करी है, कोई तरीका नहीं है ये ऐसे। और फिर बिल तुम इतना वसूल कर रहे हो। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के मुताबिक केनब पावर प्लांट में फनी खराबी की वजह से शहर में लोड शेडिंग हुई है। पावर प्लांट का मरम्मती काम खत्म होने के बाद शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला भी कम हो जाएगा। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कोरोना से सेहतयाबी के बाद शेख रशीद ऑपोजिशन पर बरस पड़े, बोले ऑपोजिशन करप्ट और मनी लॉन्डर है, ये हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका कहना था कि ना हम आखिरी चॉइस हैं और ना हम -1 हैं, अगर माइनस की बात आई तो -3 होगा। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर -1 नहीं होगा, फिर -3 होगा। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है, जिम्मेदारी हमारी, गेंद हमारी कोर्ट में है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वफाकी वजीर अली जहदी को खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि पीटीआई में अकरबा परवरी उरूज पर है, कंप्यूटराइजेशन में अरबों के गपले हुए हैं। कराची की सफाई के नाम पर जो टेका लगाया गया है आवाम को, उस पर करोड़ों रुपए लिए गए हैं। एक एमओडी साइन किया है पोर्ट कासम पे 2 बर्थों का एलएनजी की। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी परमिशन नहीं ली, आज की तारीख तक इनको नहीं मिली है। और स्वीट साउदर्न गैस की भी परमिशन नहीं ली और 2 मिलियन उनसे ले लिए, उनके जमा करा लिए हैं। ये भी जरूर पूछेगा कि विदाउट प्रायर परमिशन आप ये किस तरह कर सकते हैं। $70 मिलियन का, 70 मिलियन डॉलर, ये 2 पार्टीज इसमें आई। एक पार्टी ने 12 मिलियन डॉलर ऑफर किया और दूसरी ने 70। चेयरमैन केपेटी इस हक में थे कि 12 वाली को दे दिया जाए और वो 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। ये मौसूफ उस हक में थे कि 70 मिलियन वाली को दे दिया जाए और वो 10 साल में मुकम्मल करेंगे। इसकी वजह से ये झगड़ा बना। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट फाइनेंस खैर अपॉइंट कर लिया तरीकेकार बना के, और आप देखें कि अगर दाल में काला कुछ नहीं है, काली दाल नहीं है, तो कभी आप सोच सकते हैं कि अभी ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सिविल एविएशन ही इम्तिहान लेता है और लाइसेंस जारी करता है। अब तक सीएए की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। और मजीद बोले कि पायलट्स के लाइसेंस जारी होने के ऐलान पर दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। पायलट्स को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सफाई का मौका मिलना चाहिए। अभी तक सीए की तरफ से
کوئی بیان نہیں آیا کیونکہ سی اے ہی امتحان کراتا ہے, سی اے ہی لائسنس جاری کرتا ہے. ایویشن ڈویژن نے ان پائلٹس کو سسپیکٹڈ کیسز کہا ہے. سی اے کا لائسنس فیک یا سسپیشس نہیں ہو سکتا, یا وہ لائسنس ہے یا وہ لائسنس سسپینڈڈ ہے یا وہ لائسنس کینسلڈ ہے. ہم نے کوئی ایکشن لینے سے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ 262 لائسنس جو ہیں وہ فیک ہیں. ان 262 پائلٹوں کو امیڈیٹلی شو کاز نوٹس سی اے کو جاری کرنا چاہیے. بورڈ آف انکوائری بنا دیں, ان کو نوٹس جاری کریں, ان کو موقع دیں کہ اگر آ کے اپنی صفائی پیش کریں بورڈ آف انکوائری کے سامنے, اور ان کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے, سسپینڈ کرنا ہے, ریووک کرنا ہے یا بحال رہنے دینا ہے, وہ کارروائی ہونی چاہیے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر ہوابازی کا بیان پی آئی اے کو لے ڈوبا. یورپی یونین کی پابندی کے باعث پی آئی اے کو 33 ارب روپے نقصان کا خدشہ ہے. پی آئی اے برطانیہ کے لیے ہفتہ وار 23 پروازیں آپریٹ کر رہی تھی. پی آئی اے فلائٹس لندن کے لیے 9, مانچسٹر 10 اور 4 برمنگھم کے لیے آپریٹ کر رہی تھی. پی آئی اے کی یورپ کے لیے 6 پروازیں چلائی جاتی تھیں. پی آئی اے روٹس میں یورپ میں پیرس, ملان, بارسلونا اور کوپن ہیگن شامل تھے. رواں سال حج آپریشن نہ ہونے سے 12 ارب روپے کے نقصان کا بھی سامنا ہے. پابندی کی وجہ سے عمرہ کے لیے پروازیں بھی معطل ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جانب سے پارک لین ریفرنس میں 6 جولائی کو سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پر ہر صورت فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا, جس کے لیے 6 جولائی کو کراچی میں موجود ملزمان کی ویڈیو لنک پر حاضری یقینی بنائی جائے گی. گزشتہ سماعت پر آصف علی زرداری کی طبیعت خرابی کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے, جس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سماعت پر آصف علی زرداری کی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں ویڈیو لنک کے ذریعے ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اس ضمن میں رجسٹرار احتساب عدالت اسلام آباد نے نیب کراچی کو انتظامات مکمل کرنے کے لیے خط لکھ دیا. عدالت نے آصف علی زرداری کی خراب صحت ہونے پر گھر یا اسپتال میں ان کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی. احتساب عدالت اسلام آباد کے رجسٹرار کے خط میں کہا گیا ہے کہ 6 جولائی کو کراچی میں موجود ملزمان کی ویڈیو لنک پر حاضری یقینی بنائی جائے. وفاقی حکومت نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرپرسن نوشین امجد کو عہدے سے ہٹا دیا. محمد جاوید غنی نئے چیئرمین ایف بی آر تعینات ہو گئے ہیں. نئے چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. چیئرپرسن ایف بی آر نوشین امجد کی چھٹی, جاوید غنی نئے چیئرمین تعینات کر دیے گئے. وفاقی حکومت نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی چیئرپرسن نوشین امجد کو عہدے سے ہٹا کر محمد جاوید غنی کو چیئرمین ایف بی آر تعینات کر دیا. ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے پاکستان کسٹمز کے گریڈ 22 کے ممبر کسٹمز پالیسی جاوید غنی کو 3 ماہ کے لیے چیئرمین ایف بی آر تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی کی منظوری دی. محمد جاوید غنی ایف بی آر بورڈ کے ممبر کسٹمز پالیسی تھے. وہ ریگولر چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیں گے. نوشین امجد کو چیئرپرسن ایف بی آر کے عہدے سے ہٹا کر سیکرٹری نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچرل ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے چیئرمین ایف بی آر کے لیے موجودہ ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشن ڈاکٹر اشفاق احمد اور وزارت خزانہ کے ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ احمد مجتبیٰ میمن کے نام زیر غور ہیں. اپریل میں گریڈ 22 کی افسر نوشین جاوید امجد کو شبر زیدی کی جگہ چیئرپرسن ایف بی آر تعینات کیا گیا تھا. ان سے قبل شبر زیدی نے طبی بنیادوں پر عہدے پر کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی تھی. نوشین امجد کی تعیناتی کے وقت بھی نئے چیئرمین ایف بی آر کے لیے محمد جاوید غنی کا نام زیر غور آیا تھا. کامران چودھری, سچ نیوز, اسلام آباد. چیئرمین پاک چین اقتصادی راہداری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں سی پیک کے تحت منصوبے جاری ہیں. گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر جلد مکمل کر لی جائے گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور چیئرمین پاک چین اقتصادی راہداری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر جاری ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر گوادر کے تمام منصوبے مکمل کرنے اور لانچ کرنے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ میگا ایئرپورٹ پر $230 ملین لاگت آئے گی. ان کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ اور شہر کے لیے یہ منصوبہ اہم ثابت ہوگا. سمارٹ لاک ڈاؤن کے نتائج حاصل ہو رہے ہیں. وزیر اعظم کا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے 100 دن مکمل ہونے پر اجلاس میں اظہار خیال. این سی او سی کے مطابق ملک میں کورونا دم توڑ رہا ہے. صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में कोरोना दम तोड़ रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में NCOC की ब्रीफिंग। इनका कहना था मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज के मुतालिक ब्रीफिंग पर वज़ीर आज़म के इजहार इत्मीनान करते हुए कहा, स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। NCOC की 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने खराज तहसीन पेश किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़ीर मुआवनीन खसूसी समेत आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। इजलास में ईद उल अज़हा की SOP से मुतल्लिक तजावीज़ भी पेश की गई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि NDMA ने स्पेशलाइज्ड अस्पताल शुरू किया। सिर्फ 40 दिन में अस्पताल में सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया गया। कोरोना की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। NDMA ने इस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का पर काम शुरू किया था और जैसे एक नेशनल इमरजेंसी की स्पिरिट के साथ काम किया गया। सिर्फ 40 दिन के अंदर ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं इसको मुकम्मल किया गया। और ये जो पूरी इस अस्पताल की कहानी है वो एक कौमी जज्बे को रिफ्लेक्ट करती है। जिस तरीके से एक इनकलाबी तरीके से एक इमरजेंसी लेकर और कौमी फरीजा लेकर जिस तेजी से अस्पताल को मुकम्मल किया गया, उसी तरीके से इसको जब चलाने जा रहे हैं, इसके जो शुरू हो रहा है, जिस तरीके से इब्तिदा की जा रही है यहाँ पर काम की, वो भी कौमी जज्बे की इजहार करता है। और यहाँ पर जो लोग हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, जो सब आए हैं, उनका मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये है जिसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान एट इट्स बेस्ट, कि जब मुश्किल का वक्त आता है तो तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क वालों के लिए खिदमत के लिए पुरखुलूस जज्बे से निकलते हैं। शहर कायद में कोरोना के बढ़ते मरीज। स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा मरहला आज से शुरू हो चुका है, जबकि मुतअद्दिद इलाके सील करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। स्मार्ट लॉकडाउन 18 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। के बढ़ते मरीजों के बाद कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा मरहला शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला शर्की के गुलशन टाउन और जमशेद टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया है। गुलशन इकबाल की 6 यूसीज स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में शामिल हैं। जमशेद टाउन की 1 यूसी को भी सील कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस दौरान रिहायशियों की नकलो हमल पर पाबंदी और हर किस्म का कारोबार बंद रहेगा, लेकिन खाने पीने वाली अशिया और परचून की दुकानें खुली रहेंगी। गुलशन इकबाल के ब्लॉक 2, 3, 4, 7, 11 और 13B, 13A, B और C सील होने वालों में शामिल हैं। गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13D2 में भी स्मार्ट लॉकडाउन है। जमशेद टाउन के PECHS ब्लॉक 2 भी स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आ गया है। एक तरफ कोरोना के फैलाव के बायस इलाकों को सील किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत ने इंटर सिटी चलने वाली ट्रांसपोर्ट को SOPs के तहत चलने की इजाजत दी है। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों में मुसाफिरों को 3 फीट का फासला रखना लाजमी होगा। तमाम मुसाफिर वैन्स और बसेस में मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लाजमी होगा। मुसाफिर गाड़ियाँ सिंध हुकूमत के मुकर्ररा करदा बस अड्डों से निकलेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान स्मार्ट सैंपलिंग के हौसला अफजा नताइज के नतीजे में कोरोना केसेस में नुमाया कमी आ गई है। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान स्मार्ट सैंपलिंग के हौसला अफजा नताइज कोरोना केसेस में नुमाया कमी आई। शहर में स्मार्ट सैंपलिंग के दौरान किसी भी टाउन में कोरोना के केसेस 1% से ज्यादा ना निकले। स्मार्ट सैंपलिंग में दादागंज बख्श टाउन में 1640 टेस्टों में सिर्फ 8 पॉजिटिव निकले। शालीमार जोन में 1016 टेस्ट हुए और सिर्फ 8 मुस्बत निकले। रावी टाउन में 730 टेस्ट हुए, जिनमें से 3 मुस्बत केस सामने आए। गुलबर्ग टाउन में 2250 स्मार्ट सैंपल्स में से सिर्फ 27 पॉजिटिव निकले। कैंट जोन के 260 स्मार्ट सैंपल्स में से कोई भी पॉजिटिव केस ना निकला। लाहौर के मुख्तलिफ टाउन्स में 7 इलाकों को हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किया था। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। हुकूमत फ्लोर मिल माफिया और नान बाई एसोसिएशन के सामने बेबस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत वफाकी दारुल हुकूमत में रोटी की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नान की कीमत 15 और रोटी की कीमत 10 रुपए तक पहुंच गई।
हुकूमत रोटी की कीमत पर काबू पाने में फिर नाकाम हो गई। नान भाइयों की जानिब से रोटी की कीमत में 4 और नान की कीमत में 3 रुपए इजाफा किया गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ फ्लोर मिल माफिया बेलगाम हो चुका है, तो दूसरी जानिब नान भाई किसी कानून को मानने से इनकारी दिखाई देते हैं। दोनों के गठजोड़ की वजह से आम शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स आसिम रजा का कहना था कि हमें गंदम अजरा की सरकारी पॉलिसी मंजूर नहीं, हम बाजार से महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर हैं, जिसके बायस 20 किलो आटे के थैले का रेट 1030 रुपए ही होगा। उन्होंने कहा कि महकमा खुराक ने कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए आटे की कीमत कम नहीं कर सकते। उधर नान भाई एसोसिएशन ने खुद ही आटे का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ा दी हैं। दोनों माफियाज की लूट मार में गरीब शहरी पिसते चले जा रहे हैं। महंगाई है कि हुक्मरानों के काबू में नहीं आ रही है। अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से आवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। टमाटर 100 रुपए, आलू 70 रुपए, मुर्गी का गोश्त 380 रुपए, फ्रेश बीन 100 रुपए और दूध 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। और शहरी कहते हैं कि कोई रिलीफ नहीं है, जाएं तो जाएं कहां? का नाम ही नहीं ले रही। सब्जियों, दूध, मुर्गी के गोश्त की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हैं। शहरियों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। हुक्मरान रिलीफ देने में नाकाम हो चुके। दूध 100 रुपए किलो था, अभी 120 रुपए किलो है। और बराबर तो उसके बाद की बात है ना, आम शहरी को क्या पता क्या हो रहा है। बाकी हर चीज का रेट पता करो तो बंदा जो पैसे घर से लेके आता है तो वो आधी चीजें भी पूरी नहीं होती हैं। लिहाजा हम अपील करेंगे गवर्नमेंट को कि खदारा कुछ जो मुतलका लोग हैं इस पे कंट्रोल करें। शहरियों का कहना था कि गोश्त तो दूर की बात, सब्जियों की कीमतें भी पहुंच से दूर हैं। कोई भी रिलीफ नहीं मिला इस वक्त तक। जो कुछ भी हो रहा है, पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ, अचानक से उसकी फिर कीमतें बढ़ गई। ठीक है, अगर पेट्रोल सस्ता भी होता है उससे भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। उसके बाद बाकी जो एशियाई खुर्दनोश हैं उनकी भी कीमतों में इजाफा ही हो रहा है, बढ़ती ही जा रही हैं, उनमें भी कोई खास कमी नहीं हो रही। उन्होंने बहुत वादे किए हैं लेकिन काम अभी तक कोई तोड़ नहीं चढ़ा किसी। यानी कि अभी आप देखेंगे इन्होंने हर कारोबार सब बंद कर दिए। महंगाई इतनी हो गई है कि 10 रुपए की चीज़ अभी 50 रुपए में नहीं मिलती। ठीक है, तो गरीब लोग आवाम किधर जाएगी? शहरियों का मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। रावलपिंडी ईदगाह शरीफ में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उलमा कराम का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल इत्तेहाद में मुज़मिर है। हम सबको मिलकर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की और अपनी तजावीज दी। उलमाए कराम का कहना था कि हमें फिरका वराना और मसल की फसादात फैलाने वालों की हौसला शिकनी करनी होगी। विफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल्लाह कादरी का कहना था कि जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं उलमाए कराम और खानकाएं उनसे दूरी इख्तियार करें। जल्द इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस पे उलमाए कराम के साथ बात की जाए। ये फरीजा अव्वलीन फरीजा उन्हीं का है कि अपना हक अदा करें और इन इख्तिलाफात को जो भी अनासिर हवा दे रहे हैं या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे अपने बौद्ध का, दूरी का और उनसे बेजारी का अलानिया इजहार करें। उलमाए कराम और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज का कहना था कि दीन इस्लाम अमन मोहब्बत का दीन है और सब्र का दर्स देता है। इस्लाम तहम्मुल और बर्दाश्त, अमन और सलामती और रवादारी और एहतराम इंसानियत का सबसे अजीम मजहब है। कॉन्फ्रेंस के इलामे में कहा गया कि बामी इत्तेहाद और अखुवत का फरोग वक्त की जरूरत है। इस्लाम तहम्मुल और बर्दाश्त और एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। कैमरामैन इमरान नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, रावलपिंडी। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद अली कायद वजारत का कलमदान संभालने के बाद आबाई इलाके नगर पहुंचे तो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे पर आबाई इलाके में सैकड़ों गाड़ियों की रैली की शक्ल में लाया गया। सूबाई वजीर को फूलों के हाल भी पहनाए गए। निगरान वजीर मोहम्मद अली कायद को रैली की शक्ल में आबाई इलाके नगर ले जाया गया। रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां शामिल थी। रास्ते में मुख्तलिफ आबादियों में मोहम्मद अली कायद का इस्तकबाल किया गया। निगरान वजीर ने यादगार शहदा नगर पर हाजिरी दी। पाक वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया।
ریلی کے شرکا تھول کے مقام پر پہنچے جہاں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ اپنے خطاب میں نگران وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محمد علی قائد کا کہنا تھا کہ میرے لیے ضلع دیامر سے حمایت کرنا بین المسالک اتحاد کی بہترین مثال ہے۔ آئندہ شفاف انتخابات کرانے کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گا۔ ریلی بعد ازاں اولیاء کرام کی سرزمین غلمت میں معروف صوفی بزرگ شاہ ولی اللہ کے درگاہ پر پہنچی، جہاں نگران وزیر نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور وطن عزیز کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ معروف قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد عاقل ایڈوکیٹ کو کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پاکستان رجسٹر کا لیگل ایڈوائزر تعینات کر دیا گیا۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پاکستان رجسٹر نے قانونی معاملات اور معاونت کے لیے معروف قانون دان کی خدمات حاصل کر لی۔ معروف قانون دان ممبر پاکستان بار کونسل اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پاکستان رجسٹرڈ کا لیگل ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا، جو مستقبل میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پاکستان رجسٹر کے تمام قانونی معاملات دیکھیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں کورونا پازیٹیو ڈاکٹر کا نجی کلینک چلانے کا انکشاف۔ اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے شعبہ ہیلتھ سروسز کا ایکشن۔ ستارہ مارکیٹ میں نجی کلینک پر چھاپہ مار کر سیل کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے سجاد قاسمی سے۔ جی سجاد۔ ڈاکٹر کورونا کا پازیٹیو ہونے کے باوجود نجی کلینک کا چلا رہے اسلام آباد میں ہو رہا ہے لیکن وہاں پر اور یہاں پر یہ سیلنگ کا علاج کرے کہ وہاں پہ نظام بھی نہایت افسر تھا اور اس کے باوجود آیا تھا، اس کے باوجود نے اپنا پیسہ دیا ہے اور اس اوپر سے اپنا وہاں پر صحیح، شکریہ سجاد۔ مودی جی جاگ جاؤ اور تاریخ پڑھو، بی جے پی کے سابق رکن کی مودی پر تنقید۔ گلگت بلتستان کو فوجی طاقت سے حاصل کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ سندھیا کلکڑی میں ہری سنگھ کی آفر کو گلگت بلتستان نے بری طرح ٹھکرا دیا تھا۔ انسانیت کا دشمن ظلم ڈھانے سے باز نہ آیا۔ نام نہاد سرچ آپریشن میں بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں آج بھی انسانیت سسکنے پر مجبور ہے۔ مظالم کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ چھاپے، گرفتاریاں، قتل و غارت، مار دھاڑ، عصمت دری، بزدل بھارتی فوج نے انسانیت کی تذلیل کی ہر حد پار کر ڈالی۔ ماؤں سے لخت جگر چھین لیے، مختلف گھرانوں کے چراغ گل کر دیے، ہنستے بستے گھرانوں کو دیکھتے ہی دیکھتے آہوں، سسکیوں اور غم کی تاریک گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ نہ دن کو چین ہے، نہ ہی رات کی پرسکون نیند میسر ہے۔ ہر شخص کو بس ایک ہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب خون آشام بھارتی فوج آئے اور ان کے خوشیوں بھرے گلشن کو تاراج کر ڈالے۔ کشمیریوں کو وبائی حملوں نے بھی دوہری آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ قابض فوج کو مظالم ڈھانے کا نیا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے، جسے جی چاہا بنا کسی جرم کے لامتناہی مدت کے لیے پابندی سلاسل کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں آج بھی جبری پابندیاں برقرار ہیں، بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، تعلیم کے حصول پر پابندی ہے، معاشی سرگرمیاں بند، علاج کی سہولیات بھی چھن چکی ہیں۔ مظالم کا پول کھل جانے کے ڈر سے قابض انتظامیہ نے اہل صحافت پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اور کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں کہ ورلڈ کپ 2011 فائنل سری لنکا نے بیچ دیا تھا۔ سابق سری لنکن سپورٹ منسٹر کا ایسا کہنا ہے، اور بھارت اور سری لنکا میچ فکسنگ کا بھانڈا پھوڑنے والے سری لنکن وزیر پھر میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آئی سی سی کو پیشکش کی تھی کہ وہ مجھ سے ثبوت لے لے۔ ممننگ عدد کیانے بابٹ عدد کیانے دیداس اکول ہے منگ عدد کینوا اپی دیداس اکول ہے لوگوں کو سلانے ویک کا کیلا منگ عدد انو ہے تن مما کے کریڈا متی ورے ہٹی تو بکالت منگے کرا منگے کا وگکی من کیانے دیداس اکول ہے ایکٹ تینو نمت مما رٹک کھٹی منگے کے علی کرنے کیمتی نے مما کیانے اپی دیداس دو اکول ہے دو لہے مٹاری اور دمت کنے اپی دینن ندی بندیا وقت کے گہن ندی بتارنگے مما کینوا ایک پاوادی مک کرائی گے ایک یعنی میچ ایک سال لیول ٹویک کا ماما وگکی مکین کینوا مٹا دینے نوا۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے گرین شرٹس کی تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آج ووسٹر میں آرام کرے گی، کل سے پہلا 2 روزہ انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلے گی۔
इंग्लैंड में कौमी क्रिकेटर्स का पहला तरबियती सेशन मुकम्मल होने के बाद कल से 2 रोजा तरबियती मैच शुरू होगा। मैच का मकसद खिलाड़ियों को इंग्लैंड की मौजूद कंडीशन से हम आहंग करना है। पहले सेशन में खिलाड़ियों ने जहां फिजिकल और फील्डिंग की ट्रेनिंग पर फोकस किया, वहां नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भी भरपूर मशकें की। इंग्लैंड पहुंचने वाले 6 क्रिकेटर्स के कोविड-19 टेस्ट लिए जा चुके हैं और रिजल्ट आने के बाद टीम के हमरा ट्रेनिंग करने के अहल हो जाएंगे। वुवस्टर पहुंचने वाले मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, शादाब खान, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और बड़ा अच्छा हमारे लिए हो जाएगा कि आगे के लिए आपने जो भी क्रिकेट खेलनी है यहाँ पे इकट्ठे एक कैंप हमारा होगा। हम ये महीना 1.5 महीना बल्कि टेस्ट मैचेस के दौरान तो 2 महीने हो जाएंगे इकट्ठे रह के हम आगे के लिए जो जितना भी 5-6 महीने हमने क्रिकेट खेलनी है उसके लिए एक अच्छी टीम बॉन्डिंग भी हो जाएगी और एक अच्छी टीम डेवलप हो जाएगी। दूसरी जानिब दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल मजीद 3 खिलाड़ियों को लाहौर तलब कर लिया गया था। उन क्रिकेटर्स में इमरान खान, हैदर अली और काशिफ भट्टी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के दरिंदा सिफत कातिल को 24 अगस्त को फांसी दी जाएगी। इस सफेद फार्म दहशतगर्द ने 50 से ज्यादा नमाजियों को गोलियां मारकर शहीद किया था। फांसी की सजा की तारीख में ताखीर की वजह बताते हुए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मसाजिद में शहीद होने वालों के अहले खाना इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं है और कोरोना वबा के बाइस फौरी तौर पर वापस नहीं आ पा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि अगर लवाहिकीन कोरोना वबा की वजह से 24 अगस्त तक न्यूजीलैंड न पहुंच सके तो मुजरिम की फांसी के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लवाहिकीन की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। मुजरिम ब्रेंटन पर रवां बरस के अवाइल में 51 अफराद को कत्ल और 40 पर इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी। गुज़िश्ता बरस 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद मस्जिद अल नूर और लिनवुड मस्जिद में ऑस्ट्रेलवी सफेद फार्म इंतहा पसंद मसीही ने अंधाधुंध फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद और 40 को जख्मी कर दिया था। मुजरिम ने सफाकाना हमले के वीडियो फेसबुक पर लाइव नशर की थी। सच है कि मां की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं। भारतीय रियासत तमिलनाडु में हथनी अपने बच्चे के हमरा खुराक की तलाश में निकली। सड़क के किनारे रुकावट हथनी ने तो आसानी से उबूर कर लिया, लेकिन नन्हा हाथी कोशिश के बावजूद रुकावट पार न कर पाया। हथनी ने मंजर देखा तो रहा न गया और नन्हे हाथी को रुकावट पार करने में मदद दी। शाह अब्दुल लतीफ के मज़ार से रेडियो पाकिस्तान का सफर करने वाले अलन फकीर मखसूस अंदाज और मखसूस आवाज की बदौलत चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। अजीम फनकार को दुनिया से रुखसत हुए 20 साल बीत चुके हैं। उनके मकबूल गीत आज भी